عمران خان صاحب نے سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان ان پہ مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام مقدمات پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ان سے کسی قسم کی انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، وہ انصاف نہیں دے رہے، اور وکلا سے میں مشورہ کر رہا ہوں کہ میں بھوک ہڑتال پر چلا جاؤں، کیونکہ اس وقت انہوں نے کہا کہ عدالت جو جیل انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ کرنل کے کنٹرول میں ہے، اور کرنل اور میجر وہی سارے کنٹرول کرتے ہیں، مجھ سے ملاقاتیں، میری ایکٹیویٹیز، میری سرگرمیاں، میرے بنیادی حقوق جو بنیادی طور پر مجھے حاصل ہیں، بطور قیدی بھی حاصل ہیں، تو وہ بھی مجھے نہیں دے رہے، لہٰذا میں اس رویے کے خلاف بھوک ہڑتال کی سوچ رہا ہوں اور بھوک ہڑتال پہ چلا جاؤں، اور مقدمات کی آزادانہ سماعت نہیں ہو رہی، اور آزادانہ سماعت نہیں ہو رہی تو سیاسی اثر اندازی بھی ہو رہی ہے اور باقی بھی سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے جیل میں میرا 1 سال مکمل ہونے والا ہے، انہوں نے کہا، اور میں کسی قسم کی کوئی نہ این آر او دیا نہ این آر او لیا، اور آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز میں نہیں کروں گا، کم از کم مجھ سے ایسی کوئی توقع نہ کرے۔ اس پہ ان ہاؤس تبدیلی کے بعد صورتحال میں آپ کی حکومت آتی ہے تو پاکستان کو موجودہ صورتحال سے نکال سکیں گے؟ عمران صحافیوں نے پوچھا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک کو بحرانوں کو ایک ہی صورت سے نکالا جا سکتا ہے کہ آزاد شفاف انتخابات کے ذریعے مقتدر حلقے جو ہیں وہ انتخابات کے ذریعے اقتدار منتخب حکومت کے سپرد کر دیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ عوامی طاقت سے منتخب حکومت ہی پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے، ایسی حکومت جس پر عوام کو اعتماد ہو کہ یہ ہماری حکومت ہے اور یہ پاکستان کے مفادات اور عوام کے مفادات کے خلاف نہیں جائے گی، ایسی ہی حکومت بچا سکتی ہے۔ یہ جو لٹیرے ہیں، چور لٹیرے، یہ نہیں بچا سکتے جن کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی اپنے پارٹی رہنماؤں سے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ آپ پبلک مقامات پہ، ٹی وی ٹاک شوز پہ جا کے اور پارلیمان میں اپنے جو اختلافات ہیں، اختلاف رائے ہے، اس کا اظہار نہ کیا کریں، پارٹی کے اندر جو گفتگو ہے وہ کیا کریں، سلیقے سے چلیں، اور مشکل وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، آسانیاں آنے والی ہیں اور بہت جلد یہ آسانیاں آئیں گی، اور یہ نظام جو ہے یہ دھڑام سے گرے گا، یہ نظام نہیں چل سکتا، اور ایسے موقع پہ آپ آپس میں اختلافات کو ہوا مت دیں۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے جو اے پی سی بلائی ہے، حکومت نے جو بلائی ہے، ہماری پارٹی جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی، اور کانفرنس میں شرکت کر کے ہماری پارٹی ان کا موقف جانے گی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی خاطر کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ عدم استحکام آپریشن پر ہماری تحفظات موجود ہیں، عزم استحکام نہیں، انہوں نے کہا کہ عدم استحکام چل رہا ہے ملک میں، اور اس پہ بھی اور عزم استحکام پہ بھی ہمارے تحفظات ہیں، اور اس آپریشن سے ہمارے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا۔ یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ 2500 کلومیٹر بارڈر ہے، یہاں پر کوئی مہم جوئی خطرہ ہوگا، اس لیے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بہت بڑے واضح طور پہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں، جیل میں مر جاؤں گا، موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور وقت کے یزید کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا، اس کے سامنے جھکوں گا نہیں، جو بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا، اور جو پہلے دن موقف تھا آج بھی ہے کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا ہے، تو پھر پاکستان میں ایک صاف ستھری عوام کی منتخب قیادت ہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے، اور پی ٹی آئی اور میرے مقدمات ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیسے آ جاتے ہیں؟ میرے وکلا نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہر بینچ پر موجودگی کا اظہار کیا ہے، اعتراض کیا ہے۔ اب ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا۔ جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے۔ ہمارے وکلا کا خیال ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اس لیے ہمارے کیسز کسی اور کو سننے دیے جائیں۔ جیل میں بیٹھے کرنل اور میجر سارا نظام چلا رہے ہیں۔ میری ٹیم کل مجھ سے ملاقات کے لیے آئی تھی، 3 گھنٹے انتظار کیا، لیکن جیل کے باہر اور میں اندر ان کا انتظار کرتا رہا، اور انہوں نے اجازت نہیں دی، اور ہماری ملاقات کل نہیں ہو سکی، اور اگر ملاقات ہوتی تو میں ان کے اختلافات ختم کروا دیتا۔ سپرنٹینڈنٹ نے جیل میں بیٹھے کرنل کے کہنے پر میری ٹیم کی ملاقات نہیں کروائی، اور میں بھوک ہڑتال کرنے کے بارے میں مشاورت کر رہا ہوں۔ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا، اور پہلے پاکستان ہائیبرڈ تھا، اب اتھارٹیٹیو پر چلایا جا رہا ہے، اور اب ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے، جمہوری حکومت نہیں ہے۔
सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि करारदादों से पहले ही दुनिया भर को पता है कि इस वक्त चल क्या रहा है। आलमी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट, बुनियादी इंसानी हकूक तंजीमों की रिपोर्ट, गैर सरकारी तंजीमों की रिपोर्ट, फैफन है, पिलडाट है, पतन है, और ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो आए थे वो थे, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स आए थे वो थे, वो सब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है पिछले 27 महीनों से, और खासतौर पर 9 मई के बाद और 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद क्या हुआ। उन्होंने कहा इसके बारे में भी सबको अंदाजा है, इसलिए ये बिला वजह शोर गुल करते हैं, जबकि हकीकत से ये आंखें चुरा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जो जेल सुप्रेंट हैं वो उनकी नौकरी कर रहे हैं, और जब कहते हैं कि वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है, यानी कि कर्नल मेजर, और ये पागल हैं, ये समझते हैं कि मेरी टीम कमज़ोर होगी। उन्हें पता ही नहीं कि जिस पार्टी का वोट बैंक होता है वो पार्टी कभी कमज़ोर नहीं होती, और अवाम, पाकिस्तान के अवाम हमारी असल ताकत हैं। पाकिस्तान के अवाम पर हम एतमाद करते हैं और वो हम पर एतबार करते हैं, इसलिए हमारा जो पाकिस्तान के अवाम के साथ हमारा ताल्लुक है वो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। और जब भी हमें मौका मिलेगा खिदमत का, हम पाकिस्तान को बचाएंगे। अपने ज़ाती जो मुकदमात हैं वो उन पे तवज्जो नहीं देंगे, ना ही हमारे पे अरबों रुपए के मुकदमात हैं, ना ही बैरून मुल्क जायदादें हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम में और उनमें बड़ा फ़र्क है, और पाकिस्तान के अवाम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई है, और उन्होंने कहा कि ये जो इनको चोरी से जो इक़्तिदार मिला है और उसके दौरान इनसे मईशत संभाली नहीं जा रही, कोई दूसरा मुल्क इन पर एतबार नहीं कर रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी बिसाखियों के सहारे चल रही है। उनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, इख्तियार चाहिए, और उनको इक़्तिदार के ऐवान चाहिए, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल क्या हैं। वो जो बाहर से डिक्टेशन आती है उस पर अमल किए जा रहे हैं और अंधाधुंध किए जा रहे हैं। चोरी के मैंडेट के साथ बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे। इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये निज़ाम चल नहीं सकता और बिलाखिर उनको जाना ही होगा। उनके साथ वो हो गया जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में न लेकर जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो अपने असल मकसद से हट जाएंगे। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात और साफ शफाफ लीडरशिप, और वो भी अवाम की मुंतखब करदा लीडरशिप है। उन्होंने कहा कि ये जो सरमायाकारी कौंसिल बनाई हुई है इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, और ना ही वो ऐसा फोरम है कि जिसको हम इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके कि उसकी बुनियाद पर हम कहें कि वो सिर्फ वही है। बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए जिस पे अवाम एतमाद करें, जो कोई फैसले भी करें तो लोगों को पता हो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा रहे, और इन्होंने मुल्क में लूट मार नहीं की हुई, इन्होंने अरबों के मुकदमात ख़त्म नहीं करवाए हुए, इन्होंने NRO ना कभी लिया ना दिया। ऐसी लीडरशिप चाहिए। और बरसगीर में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं, और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। और म्यांमार की उन्होंने मिसाल दी, और उन्होंने कहा कि मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम है। मुल्क में एलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं, और मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। एलीट उसे कहते हैं जनाब जो ऊपर के लोग हैं, जो इख्तदार और इख्तियार पर काबिज होते हैं, जो मराआत याफ्ता तबका है, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े जर्नैल, वो उन्होंने कहा कंट्रोल कर रहे हैं। सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। आम तासुर है कि आपके पार्टी कायदीन ने ओहदा हासिल कर लिए, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोशिश नहीं की जा रही। ये सहाफ़ियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब खान ने, सेनेट में शिबली फराज ने, अली अमीन गंडापुर ने और दीगर रहनुमाओं ने बड़े तगड़े अंदाज में बात की है। वो अपना मौक़िफ़ डट कर बयान कर रहे हैं, और मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। इसलिए ये सारी बातें हवाई हैं कि मेरे लिए कौन क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि असल है कि हमने मुल्क को बहरान से निकालना है। उन्होंने कहा मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बाहर आ रहा कि मैं इनसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अदालतों के ज़रिए आऊँगा, इंसाफ हासिल करके आऊँगा, झूठे बेबुनियाद मुकदमात ख़त्म करवा के आऊँगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी इतनी फ़िक्र ना करें, तो मैं जहाँ हूँ मैं इंशाअल्लाह बेगुनाह हूँ, मुझे पता है, अल्लाह ताला को पता है। इसलिए ये सारे का सारा सियासी इंतकाम है, और ये डरे हुए लोग हैं, और ये जो कुछ कर सकते हैं कर लें। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है।
ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, और लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया हो, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है, और काजी फायद ईसा जो चीफ जस्टिस हैं वो उसी फ्रॉड इलेक्शन करवाने वाले और उसी फ्रॉड इलेक्शन की तारीफ कर रहे हैं। इससे बड़ा अलमिया और कोई हो नहीं सकता, और यही हमारे मौक़िफ़ की तायीद है, हमारा मौक़िफ़ सच है। ये काजी फायद ईसा साहब के अल्फाज काफ़ी हैं। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जेल वाले परेशान हैं कि मुझे हमीदुर रहमान रिपोर्ट अडयाला जेल के अंदर कैसे मिल गई। वो इस मामले को देख रहे हैं। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। मैं वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूं। जब तक जिंदा हूं ये जंग लड़ूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हूं और इसका मतलब भी समझता हूं। मरीम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूंगा कि उनकी वीडियोस निकाल कर उन पर मुकदमात दर्ज करें। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत न होने तक TTP से जंग नहीं जीत सकते, और अब तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। वो भागकर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो हमारा वजीर खारजा अफगानिस्तान क्यों नहीं गया? हम हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये मुल्क की इशू है और मुल्क की खातिर इस APC में जाएंगे। जब तक अफगान हुकूमत साथ ना दे, 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर यह जंग जीतना मुमकिन नहीं है। हमारे दौर में NDC और गनी हुकूमत आपस में मिलते थे। मैं इसके बावजूद अफगानिस्तान गया और बातचीत की।